سی عبادت کر رہا ہوں, دیکھا جائے تو کون سی نماز پڑھی, تلاوت کی, ذکر کیا, تو بندے سے محبت سے مل رہا ہوں, پیار سے مل رہا ہوں, تو سبحان اللہ, اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. کہتے ہیں نا مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو مسکرانے سے میں رب کی کون سی عبادت کر رہا ہوں, لیکن میں مسکراتا ہوں تو سامنے والا بھی مسکراتا ہے, اس کو اچھا لگتا ہے. تو اگر اس کو غور سے دیکھیں نا, تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر پیار سے رہیں, لڑائی نہ کریں, جھگڑا نہ کریں. تو اس کا مطلب دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ پیسفل ریلیجن ہے, سب سے زیادہ امن کا درس دینے والا کوئی مذہب ہے, تو وہ ہمارا پیارا مذہب اسلام ہے. اور دوسرا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا, یہ کمال کا وظیفہ, یقین کرو سارے غم دور کر دیتا ہے. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بات کرنی ہو, علماء بیٹھے ہیں, مبلغین بیٹھے ہیں, بڑا مشکل ہے ان پر بات کرنا, کیونکہ اس قدر کوالٹیز ہیں, اتنے آپ کے فضائل ہیں, اور اتنی چیزوں میں آپ پر بات کی جا سکتی ہے کہ بندہ کہے بات شروع کدھر سے کروں اور ختم کدھر سے کروں. یعنی علم کی بات کریں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علم کا پہاڑ نظر آتے ہیں. آپ نے اتنے فتاوا لکھے اور ایسے فتاوا لکھے ہیں کہ آج بھی بڑے بڑے علماء حیران ہیں کہ اللہ نے ایک شخصیت کو علم دیا تو کتنا دیا. اچھا, اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم پر مہارت تھی. سیدی اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں جو تھوڑا بہت کالج یونیورسٹی کو سمجھتے ہیں کہ شخصیات پر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ آپ کے کئی علوم پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. آپ کے ترجمہ قرآن پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے, آپ کی شاعری پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے, آپ کی فقاہت پر, آپ کی ذہانت پر, آپ کے فتاووں پر, ایک ایک سبجیکٹ پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو خود اعلیٰ حضرت کے علم کا عالم کیا ہوگا. تو علماء نے کہا کہ سیدی اعلیٰ حضرت, پہلے ایک تحقیق آئی کہ جناب 56 علوم پر, دیکھیں جو ماسٹرز کرتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں میری بات جلدی سمجھیں گے, کچھ لوگ ہیں جو سائنس میں ماسٹر کر لیتے ہیں, کچھ میتھس میں ماسٹر کر لیتے ہیں. تو نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ 2 یا 3 سبجیکٹ میں, وہ بھی بڑا کمال کا ہو, تو وہ ماسٹرز کر سکتا ہے, ورنہ 2-3 سبجیکٹ کی بڑی بات ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو 56 سے زیادہ علوم پر مہارت حاصل تھی. پھر اور تحقیق کی گئی تو بتایا گیا 100 سے زیادہ علوم پر آپ کو ایسی مہارت تھی کہ بڑے بڑے ماہرین حیران ہو جاتے تھے. اچھا, پھر علماء نے اور خوبصورت بات کہی کہ یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ 100 علوم تھے. مسئلہ یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم پر مہارت حاصل ہے یہ ہم کو نہیں پتا. جس نے جس معاملے میں مسئلہ پوچھا, اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب عطا فرما دیا. تو 100 علوم پر سوال آئے, انہوں نے 100 علوم پر جواب دے دیے. میتھمیٹکس کا سوال آیا تو میتھمیٹکس کا جواب دیا, فقہ کا سوال آیا تو فقہ کا جواب دیا, حدیث کا سوال آیا تو حدیث کا جواب دیا, بلاغت کا سوال آیا بلاغت کا جواب دیا, انگریزی میں سوال آیا تو انگریزی میں جواب دیا, ہندی میں سوال آیا ہندی میں جواب دیا, فارسی میں سوال آیا فارسی میں جواب دیا, اردو میں سوال آیا اردو میں جواب دیا. اعلیٰ حضرت سے نظم کے ذریعے, اشعار کے ذریعے سوال پوچھے گئے, میرے رضا نے اشعار میں جواب عطا فرمایا. علماء کہتے ہیں جو پوچھا گیا اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا. ان کے پاس کتنا علم تھا وہ رب جانے, جو دینے والا یا اعلیٰ حضرت جانے کتنا علم تھا. علم کا سمندر ہے. جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی, سبول سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی, خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. اللہ اکبر. اب آپ کے علم پر بات تو علماء کریں, یہ مفتیان کرام کی شان ہے, ہم جیسے کم علموں کا کام نہیں. اب بات کرتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک ایسا وصف کہ اعلیٰ حضرت کا تعارف کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر بات نہ کی جائے. آپ کی ایسی پہچان بن گیا کہ آج بھی دنیا بھر میں جب اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو ایک لفظ کہا جاتا ہے اور بتاتا ہے وہ لفظ کہ یہ شخصیت کس قدر سچے عاشق رسول ہیں. اور وہ نعرہ کیا ہے؟ عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت. کیا بات ہے, 100 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے مگر آج بھی آپ ہمیں سکھاتے ہیں کہ عشق رسول کرنا کیسے ہے. آپ
इंस्टीट्यूट हैं। अगर किसी को समझना है ना कि मैं नबी पाक से सच्चा प्यार कैसे कर सकता हूं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत कैसे कर सकता हूं, तो बरेली के ताजदार से सीखे कि नबी पाक का इश्क कैसे होता है, मोहब्बत कैसे होती है, फना फिर रसूल बनना कैसे होता है। अल्लाह अकबर। एक शेर में आला हजरत बड़ी प्यारी बात कहते हैं। आप कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा। कहते ये इश्क मुस्तफा तो मेरी जान है, ऐ अल्लाह इसको और बढ़ा दे, ये बढ़ता रहे, कभी कम ना हो। मगर अगले शेर में बड़ी निराली बात करते हैं। कहते हैं जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अरे जनाब दर्द में कब से मजा आना शुरू हो गया। दर्द आता है तो बंदा डॉक्टर के पास भागता है, दवाई ढूंढता है, जनाब दवाई दो, दर्द हो रहा है। मगर ये कैसी बात कर रही कि दर्द का मजा। अल्लाह अकबर। बरेली के ताजदार सिखा रहे हैं कि देखो जब नबी पाक से इश्क होगा ना तो दर्द तो जरूर होगा, क्योंकि आका की याद तड़पाएगी, मदीने की याद तड़पाएगी, आंखें आंसू बहाएंगी। प्यारे आका के दिल में जब याद होगी तो एक कैफियत सी बनेगी, एक दिल में दर्द उठेगा कि मैं कब आका के कदमों में जाऊंगा। लेकिन ये दर्द का मजा बहुत है। देखो दवाई नहीं चाहिए, ये दर्द बढ़ता रहेगा तो फिर लुत्फ बढ़ जाएगा। आला हजरत के बिरादरी है ना मौलाना हसन रजा खान साहब, इसी तरह की एक और बात लिखते हैं। आप फरमाते हैं मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। दर्द उल्फत भी कह रहे हैं और सुकून भी कह रहे हैं। दर्द तो सुकून की अपोजिट चीज है। जिसको दर्द हो उसको सुकून नहीं होता, जिसको सुकून हो उसको दर्द नहीं होता। मगर शहंशाह सुखन कहते हैं मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए, ऐ अल्लाह बेकरार ही रहूं, मुझे नहीं चाहिए वो करार, बस मैं चाहता हूं कि रात हो और महबूब की याद तड़पाने लगे, मैं बेकरार हो जाया करूं। मेरे सामने कोई मदीने का जिक्र करे तो मेरी आंखों से आंसू बहे, मेरे नबी पाक का कोई नाम ले तो मैं बेकरार हो जाऊं कि कब प्यारे आका का दीदार नसीब होगा। ये वो लेवल है इश्क रसूल का जो सैयद आला हजरत के दर से सीखने को मिलता है। आए हाय कैसे कुरान और हदीस पे नजर है सैयद आला हजरत की। आपकी शायरी जो है ना सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है कि कुरान और हदीस का एक ऐसा इत्र है जो बरेली के ताजदार ने हमें अता फरमाया। आपका एक शेर है मोमिन हूं मोमिनों पे रहूफ रहीब हो, साइल हूं साइलों को खुशी ला नहर की है। अब ये शेर क्या है जरा सुनिएगा। इस शेर में आप अर्ज कर रहे हैं नबी पाक से कि या रसूल अल्लाह मैं भी मोमिन हूं और आप मोमिनों पर तो रऊफ और रहीम हैं। हुजूर मैं साइल हूं, मैं मांगने वाला हूं, और साइलों को तो खुशी ला नहर की है। अब ये ला नहर क्या है जो पहली बार पढ़ते हैं उनको समझ नहीं आता। अब आओ कुरान पाक की एक आयत सुनाता हूं। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है वो अम्मस्साइला फला तनहर, ऐ महबूब तुम्हारे दर पे कोई मंगता आ जाए तो उसको खाली ना लौटाना, मंगता को झड़कना नहीं, उसे मना नहीं करना। तो कहते हैं हुजूर अल्लाह ने आपसे फरमाया है कोई साइल आ जाए तो उसे खाली ना लौटाइएगा, साइल आए तो झड़किएगा नहीं। मैं भी तो साइल हूं और साइलों को खुशी ला नहर की। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं एक वक्त ऐसा आया कि भूख से मेरा बुरा हाल, मेरा पेट मेरी पीठ से लग चुका था, लेकिन खुददारी इतनी थी कि किसी को आगे हाथ नहीं फैलाते था। कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां से गुजरे, मैं उनके करीब गया, उनसे एक शरई मसला पूछा कि जवाब तो मिल जाएगा लेकिन वो मेरा चेहरा देखेंगे, मेरी कैफियत देखेंगे तो खुद ही कुछ खाना खिला देगा। कहते सर मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से मसला पूछा, उन्होंने जवाब दिया और तशरीफ ले गए। अब मेरी वो नहीं हुई हिम्मत कि मैं खाने के लिए कुछ कहूं, क्योंकि खुददारी थी। ये भी सीखना है कि इतना भूख से बुरा हाल था मगर हाथ नहीं फैलाना है। ये हम सबके लिए दर्स है। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी को क्यों बताएं भाई हमें क्या तकलीफ है, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम गुजरे, हज़रत अबू हुरैरा को नबी पाक ने देखा, आए हाय मेरे आका तो दिलों के हाल भी जानते हैं ना। नबी पाक मुस्कुराए, कहा अबू हुरैरा मेरे साथ चलो। अपने घर ले गए, घर वालों से पूछा खाने को कुछ है। अब देखो मेरे आका का घर है, कौनैन के वाली का घर है, कितने सारे खाने होने चाहिए थे। घर वाले कहते हैं खाने को तो कुछ नहीं है, मगर अभी अभी एक साहबी एक दूध का प्याला देकर गए। फिर रुकता हूं, फिर एक दर्स की बात, फिर सीखने की बात। कभी हमारे घर में भी कुछ कमी आ जाती है, पसंद का खाना नहीं होता, थोड़े पैसे कम हो जाते हैं, नेमतें कम हो जाती हैं, कभी फ्रूट नहीं मिलता, कभी कोई चीज नहीं मिलती तो हमें बुरा लगता है, हम अफसोस करते हैं, लड़ते हैं घर वालों से।
या माद अल्लाह की बारगाह में शिकवा करते कि या अल्लाह हमारे पास तो नेमत ही नहीं। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जिसके सबब ये दुनिया बनी है। वजह तखलीक कायनात है मेरे आका, जो मालिक जन्नत है रब की अता से। रब ने अपनी जन्नत और दुनिया के सारे खजाने प्यारे आका के हाथों में अता फरमाए, मगर घर पे खाने को कुछ नहीं होता था, मगर शिकवा नहीं था। सीखो नबी पाक से और सहाबा से। हजरत अबू हुरैरा कौन है? सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले सहाबी, मगर भूख से परेशान हैं। कितने दिन मेरी और आपकी जिंदगी में आए कि हम 3 दिन भूखे रहे हो, 4 दिन भूखे रहे हो, मगर शिकवा है कि जाता नहीं। सीखो इन लोगों से, इन हस्तियों से सीखो कि ज़बान पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। आका से अर्ज किया कि हुजूर एक दूध का प्याला है, तो नबी पाक ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, ए अबू हुरैरा जाओ, जितने असहाब सुफ़्फ़ा हैं सबको बुला के ले आओ। अब ये बड़ा डिफिकल्ट काम था। खुद कहते मुझे शदीद भूख लगी है और मेरे सामने एक ही दूध का प्याला है और वो 70 सहाबा है, सबको भूख लगी हुई है, हमें क्या मिलेगा एक प्याले में है? मगर आका का हुक्म था, कहते मैं सबको बुला लाया। अब नबी पाक ने मेरे हाथ में प्याला मुबारक अता फरमाया का अबू हुरैरा बारी बारी सबको खिलाओ, जिसको ज्यादा भूख लगी उसी को बोलो खाना खिलाओ। बंदा कहता पहले मैं तो साइड पे खा लूं फिर खिला दूंगा। अब हज़रत अबू हुरैरा से ही फरमा दिया नबी पाक ने कि अबू हुरैरा सबको दूध का प्याला पिलाओ। आप कहते मैं एक को पेश करता, हो सकता है दिल में उसको ख्याल आता हो गया, इसी में पूरा हो जाएगा। और साहिब रसूल पेट भरकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पीते और जब वापस करते तो प्याला वैसे का वैसे ही होता। कहते एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को, तीसरे के बाद चौथे को, करते 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 70 सहाबा ने दूध पी लिया। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं प्याला वैसे का वैसे ही भरा हुआ है। अब नबी पाक फरमाते अबू हुरैरा तुम रह गए और मैं रह गया, ए अबू हुरैरा अब तुम पियो। हाय हाय, कहते भूख भी शदीद की, दूध बिस्मिल्लाह पढ़कर कहते मैंने रच के पिया। आका फरमाते अबू हुरैरा और पियो। कहते फिर प्याला मुंह से लगाया फिर पिया। नबी पाक फरमाते अबू हुरैरा और पियो। हाय हाय, शफकत के दरिया बह रहे थे। कहते तीसरी बार भी पिया। जब चौथी बार नबी पाक ने कहा अबू हुरैरा और पियो, मैंने कहा हुजूर बस अब पूरा पेट भर गया। अब नबी पाक ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, अच्छा प्याला वैसे ही भरा हुआ है। अब आका ने जब दूध नोश फरमाया तो पूरा दूध नबी पाक नोश फरमा गए। जब जाके वो प्याला खत्म हुआ, कमाल का मौजज़ा मेरे आका ने दिखाया कि एक प्याले में 70 सहाबा का पेट भर गया। अच्छा ये तो नबी पाक की शान है, मगर जब मेरे आका का ऐसा अजीम मौजज़ा हो तो कलम रजा कैसे खामोश रह सकता है? अब आला हजरत ने कौन सा शेर अता फरमाया, कमाल का शेर। आला हजरत सैयदना अबू हुरैरा से सवाल करते हैं, कहते क्यों जनाब अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर? शीर कहते फारसी का लफ्ज है दूध का। ए अबू हुरैरा हमें भी तो बताओ वो दूध का प्याला कैसा था? क्यों जनाब अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अरे 70 साहबा ने दूध पिया मगर उनका पेट तो भर गया, दूध का प्याला खाली ना हुआ। वाह क्या जूद करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, सबको अता फरमाते हैं। अब सुनो एक और अजीम वाकया, मेरे आका का एक और मौजज़ा। हुदैबिया का मकाम था, साहबा किराम 1500, क्वांटिटी याद रखिएगा कितने साहबा थे? 1500। अब साहबा किराम के पास पानी खत्म हो गया, तो साहबा का अकीदा भी कमाल का ना, पानी खत्म हो जाता, खाना नहीं होता, पत्थर नहीं टूटता, जख्मी हो जाते, कहीं नहीं जाते, सारी प्रॉब्लम लेकर दरबार रिसालत में हाजिर हो जाते। बारिश चाहिए तो आका की बारगाह में, बारिश रुकवानी तो नबी पाक की बारगाह में। ये सारी बातें में वाकयात मैं बयान करता जाऊंगा तो बात बड़ी हो जाएगी, उलमा की नजरों में वो सारी हदीसें आ रही होंगी कि सारी बातें हदीस में मौजूद है। बहरहाल साहबा इकराम आए नबी पाक की बारगाह में, हुजूर पानी नहीं है, 1500 साहबा हैं, वजू भी करना है, पानी भी पीना है, हमारे साथ जानवर भी हैं, वो भी प्यासे हैं। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कुआं खोदो, बोरिंग करो, सब मिलकर कोशिश करो पानी निकल आएगा। फरमाया ऐसा करो जिसके पास जितना पानी है ना थोड़ा थोड़ा भी है वो एक प्याले में भर के ले आओ। साहबा कहते हैं सबने अपने बर्तन उंडेले, अपनी छागल जो भी था उसमें से निकाला, तो भी इतना पानी बना के एक बर्तन नहीं भरा, थोड़ा सा पानी उसमें जमा हो गया। लेके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए। नबी पाक ने क्या फरमाया, अल्लाहु अकबर। आका ने अपना मुबारक हाथ जो है उस प्याले में रख दिया,
साहबा कहते हैं उस बर्तन में 5 उंगलियों से पानी जारी होना शुरू हो गया, फव्वारे की तरह पानी जारी हुआ। कहते 1500 साहबा ने पानी पिया, वुजू किया, जानवरों ने पानी पिया, हमने अपने बर्तन भर लिए। रावी लिखते हैं इतना जोश था पानी में कि अगर 1 लाख साहबा होते सबको पानी पूरा हो जाता। अच्छा, फिर उलमा ने बड़ी डिबेट की है कि जनाब दुनिया का सबसे ज्यादा मुकद्दस पानी कौन सा? हाँ, ये बड़ी कमाल की डिबेट है। हम ये समझते हैं कि जमजम शरीफ यकीनन बड़ा जमजम मुबारक पानी है, मगर जमजम कैसे जारी हुआ है? हजरत इस्माइल के पैरों के रगड़ने से। बेशक बड़ा मुकद्दस है, मगर उलमा कहते हैं जो हुदैबिया के मकाम पर मेरे आका की उंगलियों से पानी जारी हुआ है ना, अच्छा नबी पाक की उंगलियों से 1 से ज़ायद बार पानी जारी हुआ, तो जब जब मेरे आका की उंगलियों से पानी जारी हुआ, फरमाया उससे मुकद्दस पानी दुनिया में कोई और नहीं है। उन साहबा की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान जब वो पानी उन्हें पीने को मिल गया। अच्छा, वाला हजरत का कलम कैसे खामोश है? नबी पाक का ऐसा मौजज़ा हो तो मेरे रजा का कलम कैसे खामोश रहे? सुभान अल्लाह। आला हजरत क्या लिखते हैं? आप फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। सब प्यासे थे ना? उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। हुजूर ये 5 आब जो जारी हुए, आप कहते हैं पंजाब रहमत, 5 आब की 5 पानियों की नदियां ऐसी जारी हुई कि सब सहाबा सैराब हो गए। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। सदके इस इकराम के, कुर्बान इस इनाम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी, वाह वाह। सब जगह नबी पाक का चर्चा बुलंद है। अल्लाह अकबर। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हर मौजज़े के बारे में, नबी पाक के हर कमाल को जब देखते हैं तो आला हजरत दीवाना वार वहां अपना नजराना अकीदत पेश करते हैं। एक बार क्या हुआ, नबी पाक से मोहब्बत क्यों ना करें? आजकल लोग बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हो जाते हैं। मैं फला एक्टर को बड़ा पसंद करता हूँ, फला फुटबॉलर को, तो फला क्रिकेटर को, तो फला अदाकार को, और बंदा कभी उस जैसे कपड़े पहनने की, कभी उस जैसा स्टाइल अपनाने की कोशिश करता है। मुझे समझ नहीं आती क्यों इधर उधर जाते हो। मुझे दुनिया में एक बंदा बता दो जिससे तुम्हें प्यार है, बताओ उसके पसीने में बदबू आती है या खुशबू आती है? दुनिया के किसी भी बड़े आदमी की बात कर लो, उसका पसीना बदबूदार होगा। जब भी तो हम स्प्रे करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, यार मेरे पसीने से किसी को बदबू ना आ जाए। मैं तो उसकी बात करता हूं जिसका पसीना मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। और कैसा पसीना मुबारक था सुनो। मदीना मुनव्वरा में एक साहबी नबी पाक के पास आए, कहते हुजूर बच्ची की शादी है और इत्र के लिए पैसे नहीं है, इत्र खरीदना है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल आना, एक खुले मुंह वाली शीशी लाना, साथ एक लकड़ी का टुकड़ा ले आना। हदीस पाक का खुलासा पेश कर। वो दूसरे दिन आए तो शीशी भी ले आए, एक लकड़ी का टुकड़ा भी ले आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसी के सामने, उन साहबी के सामने ही अपने हाथों से पसीना निकालना शुरू किया। अच्छा, नबी पाक की बारगाह में पसीना हाजिरी भी बहुत देता था। हाँ, बहुत पसीने की हाजिरी होती थी। तो आका ने पसीना निकालना शुरू किया और वो बोतल भर दी। अब फरमाया जाओ अपनी बेटी को दे दो, दुल्हन को, कि उसको इस्तेमाल करें। साहबी भी कैसे मोहब्बत करने वाले, वो दुल्हन भी कैसी सादतमंद। ये नहीं कहा बाबा जान इतर मंगाया, आप नबी पाक का पसीना ले आए। उस दुल्हन ने वो इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं और आज आप इतर की दुकान पे जाते हैं तो इतर वाले को कहते हैं ऐसा इतर दो जरा महक ज्यादा हो, दूर तक जाए। सुनो, उस दुल्हन ने पसीना लगाया, पूरे मदीने में खुशबू फैलने लग गई। अच्छा, हदीस के अल्फाज हैं, उलमा बैठे, उस घर को मदीना मुनव्वरा में खुशबूदार घर का नाम दे दिया गया। वो घर ही मदीने में महकने लग गया। अब मेरे आका का ऐसा कमाल हो तो मेरे रजा का कलम कैसे खामोश रहे? आप कहते हैं वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, क्योंकि सरताब कदम है करे सुल्ताने ज़मन फूल। लब फूल, बदन फूल, सकन फूल, तहन फूल, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। आका तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। हजरत की किस किस इश्क की अदा की बात करें। वल्लाह सैयदी आला हजरत पर कुर्बान है, उनको जी चाहता है। आका से मोहब्बत का आलम तो बड़ा ही निराला था। सैयदी आला हजरत तो मदीने के कुत्तों से भी वालेहाना प्यार कर रहे हैं। आला हजरत अपने कलाम में लिखते हैं ना,
पार आए दिल भी न निकला, दिल से तुमसे में रजा। ए रजा मदीने गए थे तो मदीने के जो सग होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको अपने दिल का टुकड़ा काट कर खिलाते हैं ना। आपने देखा होगा जो कुत्ते होते हैं, सग होते हैं, वो गोश्त का टुकड़ा बड़ा पसंद करते हैं। आला हज़रत कहते हैं तो आका के दर के सग हैं, तो इनको तो दिल का टुकड़ा काट के खिलाना चाहिए था ना। तो क्या हो जाता, ए रजा दुनिया से चला जाता, मर जाता ना। तो और क्या हो जाता, नबी पाक के दर के कुत्तों से तुझे इतनी जान प्यारी है। इश्क देखो, कहते पार आए दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रजा। उन सगाने को से इतनी जान प्यारी बाहर कुर्बान कर देता नबी पाक के दर के जो सग हैं उन पर। एक और जगह हज़रत कहते हैं रजा तेरे दिमाग के चर्चे बड़े हैं, तू बड़ा ज़हीन मशहूर है, तू बड़ा मुफ्ती मशहूर है, मगर एक अकल का काम किया या नहीं किया? कौन सा काम? जरा सुनो, आला हज़रत की दीवानगी का लेवल देखो। एक तरफ वक्त के इमाम, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुफ्ती आजम, मगर दीवानगी कैसी है? आप कहते हैं ए रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे। आए अल्लाह उनके सदके इश्क रसूल का फर्क। ए रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। ए रजा तेरे दिमाग के चर्चे हैं, असल काम तो ये होता कि किसी मदीने के कुत्तों के पैर चूम लेता, क्योंकि तेरे नबी के गलियों में घूमने वाले हैं। अल्लाह अकबर, ये नबी पाक से मोहब्बत का अंदाज। आज मैं और आप कहीं घूमने फिरने जाएं, हमें कोई बाग नजर आता है, दिल हरा भरा हो जाता है, तबीयत फ्रेश हो जाती है, मगर पूछो रजा से, ऐसा लगता जब बाग देखते थे, जब भी आका की याद सताती थी, कहते उन्हीं की बू माया ए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। अरे ये गुलाब की रंगत भी है तो मेरे आका की बरकत से है। कभी अच्छी हवा, ठंडी हवा, सुबह को हम जाते हैं, हवा महकती नजर आती है, मगर बरेली के ताजदार को जब अच्छी खुशबू फूलों की मिली, अच्छी हवा मिली, तो कहते हैं क्या मदीने से हवा आई कि फूलों में है आज। लगता है मदीने से हवा आई है क्योंकि आज फूलों से बड़ी महक आ रही है, फूलों में बड़ा मजा आ रहा है। क्या मदीने से हवा आई कि फूलों में है आज कुछ नई बू, भीनी भीनी प्यारी प्यारी, वाह वाह अल्लाह अकबर। ये कैसा इश्क था। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जब चांद को देखते, दुनिया में बड़ा मशहूर है कि चांद बहुत खूबसूरत होता है, चांद बड़ा निराला है, मगर आला हज़रत जब चांद को देखते थे ना तो उन्हें आका का दर याद आ जाता था। आप देखें चांद जो पहली रात का चांद होता है, ठीक है, वो क्या होता है? प्याले की तरह होता है। आपने देखा ना, प्याला भी बन जाता है, क्रिसेंट कहते हैं उसको। तो आला हज़रत ने हो सकता